So yes, hello everyone. Today we'll start the next chapter, chapter number 10th of the book Beehive, that is Kathmandu. Everyone knows what Kathmandu is. Kathmandu is the capital of Nepal, right? So यहाँ पे this chapter is written by Vikram Seth, as in it is an extract from his description. He was traveling. It's like कि if we talk about traveling, तो यहाँ पे विक्रम सेठ जो है हमारे जो writer है, he enjoys actually travels a lot and he expressed that thing in his book, that is Heaven Lake. ठीक है? So यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है काठमांडू, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स विक्रम सेठ's बुक हेवन लेक, जहाँ पे उन्होंने while he was traveling, while he was on a long journey from China to India via Tibet and Nepal, so he described Kathmandu's experience where he traveled two places, Pashupatinath Temple and Buddhist Bodhnat Stupa. Okay, so यहाँ पे वो सारी चीजें जो है डिफाइन कर रखी है and let us read his experience while he was traveling to Kathmandu. Let us read his description of the place Kathmandu. Okay. So I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. यहाँ पे I defines what, here we are talking about Vikram Seth, our writer. ठीक है? I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं एक बहुत नॉर्मल सा सस्ता सा रूम लेता हूँ and I slept for hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists both. Okay, next morning definitely जो organizer हैं, यहाँ पे Mr. शाह जो है उनका description proper given नहीं है, उनके son और उनके nephew के साथ में मैं दो temples जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा importance है Hindus and Buddhists के लिए, वहाँ पे visit करता हूँ. At Pashupatinath Temple, the first temple which I visited was Pashupatinath Temple. Okay, so at Pashupatinath Temple, जहाँ पे Pashupatinath Temple के आगे outside which a sign proclaims entrance for Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. ठीक है, Pashupatinath Temple जैसे ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक sign board लगा हुआ होता है और वहाँ पे that sign board declares that entrance for Hindus only. Proclaims का मतलब क्या होता है, which if we make something known for publicly and officially, basically अगर हम proclaims को define करें तो declares. फाइन, तो वहाँ पे जो साइन बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है कि एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली हिंदू पीपल कैन एंटर देयर. एंड आउटसाइड दैट टेम्पल देयर वाज अ एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन, अटमोस्ट कंफ्यूजन वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. ठीक है, तो हरिड एक्टिविटीज, कंप्लीट केओस, कंप्लीट कंफ्यूजन का जो एनवायरनमेंट है वैसा वहाँ पे होता है. बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हम किसी भी टेम्पल के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वही चीज़ डिफाइन कर रखी है. प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग रोम थ्रू द ग्राउंड. ठीक है, वहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं. देयर वर प्रीस्ट्स, there were hawkers are the shopkeepers who are hawking for their wares, for their products. Devotees, ठीक है, tourists होते हैं, cows, monkeys, pigeons, dogs, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं. We offer a few flowers. Obviously अगर हम किसी भी टेम्पल में जाते हैं तो हम कुछ ऑफरिंग जो है वो ऑफर करते हैं. So we offer a few flowers there. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the फ्रंट. वहाँ पे इतने ज़्यादा वर्शिपर्स होते हैं कि कुछ लोग जो डेफिनेटली ऑफरिंग कर रहे हैं, दे वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ द प्रीस्ट, दे वर एल्बोड डाउन. ठीक है, मतलब क्योंकि धक्का मुक्की वाली सिचुएशन होती है तो जॉसलिंग पोजीशन होती है, तो दे वर जस्ट एल्बोड डाउन बाय द अदर वर्शिपर्स ओवर देयर. अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बोज एंड मेक्स वे. अब सडनली इतनी ज्यादा भीड़ में से जहाँ पे एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है एंड ऑल, जैसे ही वहाँ पे एक रॉयल प्रिंसेस जो है, ठीक है, एक रॉयल नेपालीज प्रिंसेस जो है वो अपीयर होती है. ठीक है, जो रॉयल नेपालीज हाउस से बिलोंग करती है, वैसे ही सारे जने जो हैं दे बो डाउन, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो लोग बो डाउन होते हैं एंड मेक वे फॉर हर. ठीक है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन में से, इतनी ज्यादा भीड़ में से सडनली क्या होता है, उस प्रिंसेस के लिए रास्ता बनाया जाता है. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for
permission to enter. And by the main gate क्या हो रहा होता है, there were some westerners, there were some foreigners who were wearing saffron colored clothes. Clad का मतलब होता है saffron worn, या जिन्होंने सैफरन कलर्ड जो ड्रेसेस हैं वो पहन रखी होती हैं, ठीक है, वो परमिशन मतलब इट्स लाइक कि वो इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि कैसे न कैसे कर उनको अंदर जाने की परमिशन मिल जाए. The policeman is not convinced that they are Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. अब वहाँ पे मेन गेट पे जो पुलिसमैन होता है, he was not agreed कि भाई उनको एंटर करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा होता है, बिकॉज वहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि देयर इज एंट्रीज फॉर हिंदूज ओनली. तो वो इस चीज से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता कि वो हिंदूज हैं या नहीं है, ठीक है. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati. ठीक है, अब क्या होता है, सडनली दो मंकीज जो है उनके बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. एक जो है दूसरे के पीछे भाग रहा है, एक शिवलिंग के ऊपर से होके गुजरता है, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है. देन दे रैन डाउन द रिवर टू द होली बागमती, ठीक है. दिस इज द पशुपतिनाथ टेम्पल, ठीक है. सो फिर क्या होता है, दैट फ्लोज बिलो, जहाँ पे टेम्पल के नीचे से जो रिवर बागमती है वो मतलब वो पास हो रही होती है, मतलब इट्स लाइक कि वहाँ पे उसका पैसेज होता है. तो वो जो मंकीज हैं वो इधर उधर लड़ते हुए उधर की तरफ जाते हैं. अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स. वॉशरवुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ, ठीक है. अ कॉर्प्स इज व्हाट, अ ह्यूमन डेड बॉडी, ठीक है. सो वहाँ पे क्या होता है, on the banks of that river Bagmati, एक corpse जो है वो cremate किया जा रहा होता है. cremate is means which has been burned, ठीक है, right. so cremate corpse जो है उसको वहाँ जलाया जा रहा होता है. दूसरे साइड पे washerwomen जो है वो अपना काम कर रही होती हैं, प्लस कहीं पे children जो है they are bathing, they are having fun, they are bathing, okay. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. Now if you are having a view, if you are observing the thing, ठीक है, तो एक तरफ क्या हो रहा है कि on one of the bank there was a corpse which has been cremated. On the other side, washerwomen are doing their work, as in they were washing clothes. On at some place, children are bathing, okay. From the balcony of some house, ठीक है, a basket of flowers, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं, जो कि ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड एज इन नाउ ड्राइड. अब एक्चुअली ये सब देखते हैं अपने अपने घर में, ठीक है. जो हम भगवान को मतलब गॉड को जो फूल चढ़ा रहे हैं या जो भी चीज चढ़ा रहे हैं, वो थोड़े टाइम में क्या होता है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, ठीक है. तो उनको एक जगह रख दिया जाता है और फिर रिवर में डालकर आ जाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है. सो यहाँ पे एक बालकनी में से एक बास्केट जिसमें फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ओल्ड ऑफरिंग्स जो डेफिनेटली ड्राइड आउट हो गई है उनको ड्रॉप किया जा रहा है रिवर में. अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक. नाउ देयर वाज अ स्मॉल श्राइन. श्राइन इज व्हाट, अ प्लेस टू वर्शिप. अब आप श्राइन कुछ भी कर लो, जैसे अगर आप एक शिवलिंग भी है उसको अभी आप श्राइन कर सकते हैं. तो देयर वाज अ श्राइन व्हिच वाज हाफ प्रोट्रूडिंग. प्रोट्रूड मींस हाफ कमिंग आउट ऑफ, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द वे, ठीक है, राइट. सो क्या होता है कि जो श्राइन होता है वो स्टोन से, मतलब जो स्टोन प्लेटफॉर्म है, रिवर बैंक का जो स्टोन प्लेटफॉर्म है, उससे थोड़ा सा बाहर आ रहा होता है, ठीक है. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of Kalyug will end on earth. और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब वो श्राइन जो है वो कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा. अभी तो क्या है कि वो जो रिवर बागमती है उसमें से, उसके पानी में से बाहर आ रहा है, दिखाई दे रहा है. अब ऐसे बोला जाता है कि अगर वो कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, तो जो गॉडेस है वहां पे, मतलब वो गॉडेस जो है उसके अंदर, इट विल एस्केप. और हमारा जो ईविल पीरियड, हम बोलते हैं कलयुग जो है वो ईविल पीरियड है, शैतानों का पीरियड है, ठीक है. सो ईविल पीरियड जो है कलयुग का वो एंड हो जाएगा अर्थ पर, ठीक है, क्लियर. सो दिस वाज about Pashupatinath Temple. Vikram Seth explains these things about Pashupatinath Temple. Next he was talking about the Bodhnat Stupa. ठीक है, so here the second place which he visited there is Bodhnat Stupa. At the Bodhnat Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a scene of stillness. ठीक है, now
यहाँ पे इनिशियली जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था अभी डिफाइन किया था कि वो वहाँ पे काठमांडू में 2 प्लेसेस विजिट करता है जो हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. फॉर हिंदूज द पशुपतिनाथ टेम्पल, फॉर बुद्धिस्ट बौद्धनाथ स्तूपा. ठीक है, सो इट वाज अ बुद्धिस्ट श्राइन, इट इज अ बुद्धिस्ट श्राइन. And in contrast to to Pashupatinath Temple, there was a sense of stillness. In contrast as in अगर मैं दोनों को compare करूं तो पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा sense of confusion होता है. Here it is a sense of stillness, बहुत ज्यादा शांति है. ठीक है, its immense white dome is ringed by a road. और जो बौद्धनाथ स्तूपा जो है it is a dome shaped place. ठीक है, so उसका जो बड़ा सारा डोम, इट्स बड़ा सारा जो वाइट डूम है दैट वाज रिंग्ड बाय रोड, उसके चारों तरफ रोड है. स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स. ठीक है, और उसके बाहर छोटी छोटी शॉप्स जो है वो लगी हुई हैं. मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स. तिब्बतन इमिग्रेंट्स एज इन जो वहां से माइग्रेट होकर यहाँ रहने लग गए हैं. फेल्ट बैग्स एज इन फेल्ट इज अ मटीरियल. ठीक है, अ क्लॉथ मटीरियल जिसके बैग्स बनते हैं. ठीक है, सो फेल्ट बैग्स, अब दे पीपल हैव देयर शॉप्स. ठीक है, सो वहां पे वो अपने शॉप्स पे अपने अपने जो वेयर्स है, अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं. फेल्ट बैग्स, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a heaven of quietness in the busy streets around. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है. This is a heaven, heaven as in it is not heaven, H-E-A-V-E-N, it is heaven. That means a safe place of quietness in the busy street around. ठीक है, that वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति होती है. ठीक है, Kathmandu is vivid, mercenary, religious with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets. ठीक है, अब काठमांडू जो है it is vivid. vivid का मतलब क्या होता है? It is bright. आप अगर जाओगे तो श्राइन्स वगैरह देखेंगे तो जो एनवायरमेंट होता है. mercenary is related to money. ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि जैसे मैंने बोला कि तिब्बतन इमिग्रेंट्स जो हैं दे सेल देयर प्रोडक्ट्स देयर, सो इट इज रिलेटेड टू मनी. रिलीजियस ऑब्वियसली बिकॉज वहां पे 2 रिलीजियस प्लेसेस अवेलेबल है. विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडॉर्न्ड डीटीज, जहाँ पे छोटे श्राइन्स से लेकर जो फ्लावर अडॉर्न्ड डीटीज हैं, गॉड या गॉडेसेस जो हैं वो हैं वहाँ पे. along the narrowest and busiest streets with fruit sellers, जहाँ पे fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls, chocolates और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटिक्स. तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, वहां पे छोटे से श्राइन से लेकर बड़े बड़े गॉड या गॉडेसेस की जो मूर्तियां हैं वो आपको मिल जाएंगी. ठीक है, हर टाइप की शॉप, फ्रूट सेलर, फ्लूट सेलर, हॉकर्स जो पोस्ट कार्ड सेल कर रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स जो है वो सेल आउट हो रही हैं, चॉकलेट्स या फिर कॉपर यूटेंसिल्स या फिर नेपालीज एंटीक्स जो है, दोज ऑल आर अवेलेबल देयर. ठीक है, तो इन ऑल दैट इज अ वेरी बिजी एंड वेरी विविड प्लेस. ओके, film songs blare out of the radios, car horns sound, bicycle bell ring, stray cows low questioningly at, motorcycle vendors shout out their wares. ठीक है, अब वहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी शॉप पे, जैसे हम डेफिनेटली कहीं जा रहे हो नई प्लेस पे या फिर ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो. ठीक है, तो क्या होता है कि आपको फिल्म सॉन्ग्स सुनाई दे रहे हैं या फिर जो भजन है, होली सॉन्ग्स जो है वो सुनाई दे रहे हैं. राइट, देयर आर सम कार के हॉर्न्स जो है हॉन्क करते हुए सुनाई देंगे, बाइसिकल हॉर्न्स जो है वो रिंग करते हुए सुनाई देंगे. स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स. अब स्ट्रे काउज जो है वो इधर उधर, मतलब ऐसा होता है कभी ना किसी गाड़ी के सामने आ जाती है. वेंडर शाउट आउट फॉर देयर वेयर्स, और वहां पे जो वेंडर्स हैं एज इन जो शॉप सेलर्स हैं, दे आर शाउटिंग आउट फॉर देयर वेयर्स. वेयर्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स. दे आर शाउटिंग आउट फॉर देयर प्रोडक्ट्स जस्ट टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल एज इन जब भी हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो शॉप सेलर जो होता है ही वाज शाउटिंग आउट फॉर हिज और हर प्रोडक्ट. ओके, now this is the picture of Bodhnat Stupa, a dome shaped place is there. Okay, next is I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in the charcoal brazier on the pavement. ठीक है, now he said कि ये सारी सिचुएशन या ये सारे एनवायरनमेंट में I indulge myself mindlessly. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खो जाता हूँ. I bought a bar of marzipan. Marzipan is a sweet
मतलब it's like it is a sweet dish, ठीक है, and which is made with grated almonds. Okay, मैं एक marzipan लेता हूँ, ठीक है, then I bought a corn on the cob. Corn on the cob, in a very simple language, in our Indian language, it is bhutta. ठीक है, so corn on the cob is just bhutta. ठीक है, that was roasted in a charcoal brazier. Brazier is what? The oven. ठीक है, जो ट्रेडिशनल अवन होता है जिसको हम ऐसे बोलते हैं सिगड़ी या भट्टी में सिक रहा है. ठीक है, तो मैं एक मार्जीपान लेता हूँ. आई बॉट कॉर्न ऑन द कॉब, जो कि एक चारकोल ब्रेजियर में, चारकोल अवन में सिका हुआ था, एंड इट वॉज रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन. ठीक है, जिस तरीके से हम खाते हैं. A couple of love story comics and even a reader's digest, plus I bought some reading books also. ठीक है, all this I washed down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and felt much the better for it. ठीक है, all this I washed down as in all this I digest. ठीक है, जब आप इतनी सारी चीजें खा लेते हो तो you have some drink just to digest the thing. Okay, clear? Then I felt better after that. I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges, past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna, past Agra to Delhi. ठीक है, अब क्या होता है कि मेरे दिमाग में ये बात चल रही होती है कि मुझे कौन सा रूट लेना चाहिए वापस मेरा घर दिल्ली जाने के लिए. ठीक है, और अगर मैं अपने enthusiasm के अकॉर्डिंग चलूँ, if I were to propelled by my enthusiasm फॉर ट्रैवल पर से का मतलब होता है फॉर बाय इटसेल्फ. अगर मैं ट्रैवलिंग सेंस में या उसके एंथुजियाज्म को फॉलो करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से एक बस लेनी चाहिए या फिर ट्रेन लेनी चाहिए पटना के लिए. फिर देन आई सेल अप द गेंजेस रिवर पास्ट बनारस के बाद वहाँ से मैं इलाहाबाद जाऊँगा, देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली. तो मेरा रूट ये होना चाहिए था. ठीक है, अगर मैं अपने एंथुजियाज्म को फॉलो करूं तो मैं यहाँ से पटना जाता, फिर वहां से बनारस से इलाहाबाद, देन आगरा से दिल्ली, ऐसा जाता. बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एज एन आई एम टू टायर्ड, प्लस I was feeling homesick. I just deadly wanted to go to my home back. And today is the last day of August. Go home, I tell myself. Finally, I came to a conclusion कि मुझे घर जाना चाहिए. ठीक है, move directly towards home. I enter a Nepalese airline office and buy a ticket for tomorrow's flight. तो मैं क्या करता हूँ, finally I decided कि instead of traveling this route, I need to go back to my home directly to Delhi. तो मैं Nepalese airlines में office में जाता हूँ and I bought my tomorrow's ticket to Delhi. Okay? Next is, I look at the flute seller standing in the corner of the square near the hotel. अब finally क्या होता है कि मुझे वहाँ पे एक flute seller, flute is what, बांसुरी, ठीक है, तो मुझे एक flute seller दिखाई देता है जो वहाँ पे एक होटल के पास में स्क्वायर के कॉर्नर पे खड़ा हुआ होता है. In his hand a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. Now in it what happened, in his hand there was a pole जिसमें it's like in that pole there was an attachment जहाँ पे around 50 to 60 bansuris जो है those were coming out of that pole. ठीक है, protrude is what I have discussed it earlier. Protrude का मतलब होता है coming. So that around 50 to 60 bansuris were coming out of the pole like in all the direction like the quills of a porcupine. Quills are the thorns. ठीक है, क्लियर, ऑफ अ porcupine. Porcupine is an animal, आप सबने देखा होगा जिसके थॉर्न्स होते हैं. ठीक है, और क्या होता है कि वो सडनली अगर कोई टच करता है तो वो खड़े हो जाते हैं, राइट. दे आर ऑफ बैम्बू, दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स. और वो जो सारी फ्लूट्स होती हैं वो बैम्बू की बनी हुई होती है. देर आर क्रॉस फ्लूट्स, कुछ क्रॉस फ्लूट्स होती है, कुछ रिकॉर्डर्स होते हैं. From time to time he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a minute. और थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता है, वो अपने पोल को, पहले तो उसने ऐसे अपने शोल्डर पे उठा रखी होती है, वो अपने पोल को ग्राउंड पे रखता है, एक बांसुरी जो है वो सेलेक्ट करता है, and he started playing that flute. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers cries. अब क्या होता है कि जो sound होती है वो clearly audible होती है in the noise of the traffic and the hawkers जो चिल्ला रहे होते हैं अपने wares के लिए. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his ware. अब वो बहुत
हल्के से मेडिटेटिवली फ्लूट बजा रहा होता है। कभी भी अगर आपने देखा हो कि आपकी गली में या कहीं पे भी आपने किसी एक फ्लूट सेलर को फ्लूट बजाते हुए देखा होगा, तो बड़ी मेडिटेटिवली अपने ही धुन में बजा रहा होता है। He was not shouting out for his wear. वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए शाउट नहीं कर रहा होता है, वो ये तो नहीं बोलता कि फ्लूट ले लो, ऐसा तो नहीं बोलता है। तो he was not shouting out for his wear, he was just simply and meditatively playing the flute. Okay, occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Okay, sometimes he break off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. Now occasionally he makes a sale, मतलब कभी कभी ही उसकी सेल होती होगी या बिक्री होती होगी, ठीक है, बट वो इतना curiously off-handedly, it's like कि वो इतना casual manner में इतनी मेडिटेटिवली फ्लूट्स बजा रहा होता है। अब समटाइम्स ही टेक अ ब्रेक, ठीक है, वो फ्लूट बजाते हुए रुक जाता है और वहां पे जो फ्रूट सेलर होता है उससे बात करने लग जाता है, ठीक है। आई इमेजिन कि उसका यही लाइफस्टाइल है, ही डू दिस फॉर हिज लिविंग फॉर मेनी इयर्स, वो काफी सालों से ऐसा ही करता आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, फ्लूट म्यूजिक अवे ऑलवेज डज दिस टू मी। और डेफिनेटली जब मैं फ्लूट सेलर को फ्लूट बजाते हुए देख रहा होता हूँ तो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं वहां से चला जाऊं, बिकॉज फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज इंटरेस्ट मी. It is at once the most universal and most particular of sound, or at once if I talk about, it is the most unique and particular sound, right? There is no culture that does not have its flute. ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जहाँ पे फ्लूट नहीं है। हर कल्चर में अलग अलग तरीके की फ्लूट्स यानी रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स है ही सही। The reed ne, the recorder, Japanese shakuhachi, ठीक है, the Japanese flute is known as shakuhachi. The deep बांसुरी of Hindustani classical music, हिंदुस्तान में, इंडिया में हम उसको बांसुरी बोलते हैं, which used in classical music. The clear or breathy flute of South Africa. Next he was talking about that there are clear and breathy flutes of South Africa. The high pitched Chinese flute, and next is the high pitched Chinese flutes. Each has its specific fingering and compass. It weaves its own association, ठीक है। और हर एक फ्लूट का, चाहे हम वो जापानीज शाकुहाची ले लें, हिंदुस्तानी फ्लूट ले लें, साउथ अमेरिका की फ्लूट्स ले लें, या फिर हम चाइना की हाई पिच फ्लूट्स ले लें, हर किसी का एक अलग ही फिंगरिंग पैटर्न एज इन जब हम उसको प्ले करते हैं तो बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स बाय विद आवर फिंगर्स, ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलर पैटर्न। एंड द कंपस हियर मीन्स रेंज, ठीक है। तो everyone has its particular pattern and a particular range. It weaves, yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by the music closest in its phrases and sentences to the human voice. और कभी भी किसी भी फ्लूट को अगर हम सुनते हैं तो it actually relates to the commonality of a human voice, because हर एक फ्लूट को by opening and closing the rolls, by opening and closing the holes, and by it's like कि associating our breath over there, ठीक है। So हर एक चीज के साथ में एक ही पैटर्न है, एक ही रेंज है, ठीक है। Next is, and that is closely related to human voice. Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. और हर किसी के साथ में जो सिंगल पैटर्न है वो क्या है? The motive force is what? The living breath, ठीक है। हर एक चीज को by closing and opening the holes, by associating the breath is what it goes on, okay. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, ठीक है। और it seems like whenever I am hearing to that, it seems like I can associate, I can relate to some of the phrases and some of the songs, और मुझे बहुत ज़्यादा inviting लगती है whenever I came to my home from abroad. I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. तो he said कि मैंने बड़ी मुश्किल से कभी ये सारी चीज़ें notice करी थी, but when I hear it right now, it really gave me a different significance and all. What I do have it now, ठीक है? So this is the chapter all about. It is an extract from Heaven Lake, the book of Vikram Seth Heaven Lake. While he was traveling from China to India and via Tibet and Nepal, so he expressed his description of Kathmandu in this chapter. Okay, thank you.